लास्ट ईयर बहुत लोगों को नोटिसेस आए. यस राइट, व्हाट वाज दैट नंबर एग्जैक्टली? कितने लोगों को नोटिसेस आए? ऑलमोस्ट 3-4 लाख लोगों को तो अभी रिसेंट में नोटिस आ गए हैं. Right. ओनली फॉर द पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन Right. के नोटिस आए बिकॉज मोस्ट ऑफ द सैलरीड पीपल हैव डन इलीगल पॉलिटिकल डोनेशन. इंडिया में करीबन 9 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं. लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 70% लोगों ने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है. ये साल मेरी जो उम्मीद है ये ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल will file under the new regime. So most of the young investors today who are saving their money to buy a house, please use this section 54F. अगर आपकी शादी है और आपकी शादी में आपको पैसे मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं टू नॉन रिलेटिव पीपल, that is also tax free. But is there a limit or an amount to it? Nothing. अगर even if you get a 150 crore jet from Mukesh Ambani, it will be tax free. किसी का रेवेन्यू टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है, पूरा वाइट में 6% उसको प्रॉफिट दिखाना है, which is 12 लाख रुपए, completely tax. Hi guys, welcome to Aspro's podcast once again. And जैसा कि आप लोगों को पता होगा, टैक्स सीजन इज कमिंग अप. Obviously आपकी फाइलिंग्स में भी टाइम है, बट it is very crucial that before 31st March you take certain steps or you get to know certain things about your filings so that you are able to take precautionary measures or do the right things for your taxation right away. Because अगर आप ये ठीक टाइम पे नहीं करते हो, then there are a lot of repercussions that you face later on. And आजकल, if you don't know, there are a lot of people who are receiving income tax notices without thinking कि यार हमारी इसमें क्या गलती थी. Then there is obviously a lot of confusion between old and new tax regime. And there are a lot of other complications that you'll get your answers about in this podcast. So today we have Abhishek Mehta with us. He is also a CA and a CFA. And he heads Mehta Associates and is also one of the chief mentors at Investor Capital. So hi Abhishek, welcome to the podcast. Thank you so much, Vishwaji. Right. So Abhishek, you lately have been the go-to guy for income tax. You also recently did a very popular interview with the Legacy Media News channel as well. Yes. I'm forgetting the name. Was it CNBC or NDTV? NDTV, sorry, yes. NDTV Profit. Yes. Right. So that is where let's say I saw you and we finally connected. So I'll start away, because we are recording this on March 11, right? And I think this might go out by max March 18, 20, whatever. Before March 31st, it becomes really, really critical for us to understand certain things, right? And the first question is, what is the core difference between the old and the new tax regime? Because since the new tax regime has come about, a lot of people think कि यार पुरानी में भी tax regime better थी, ये नई tax regime क्या है हमें नहीं समझ आ रही है. So if you can just clear it out, what the difference is? So विश्वाजी, न्यू और ओल्ड में डिफरेंस इतना है. सबसे पहले तो टैक्स रेट्स में चेंजेस है. न्यू रिजीम में क्या है, देर इज़ लेसर टैक्सेस, बट बाद में उसमें कुछ रिपरकशंस भी है. जैसे न्यू रिजीम के टैक्स रेट्स क्या है, 0 to 4 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको 0 टैक्स भरना है. 4 to 8 पे 5% है, 8 से 12 पे 10 है, 12 to 16 इज़ 15, 16 to 20 इज़ 20%, 20 to 24 इज़ 25% और 24 लैक्स के ऊपर आपको 30% टैक्स भरना है. जस्ट टू बी स्पेसिफिक, ये स्लैब रेट्स है. तो अगर किसी की इनकम 20 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे सीधा 20% का टैक्स भरना है. उसे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स, पहले 4 लाख पे 0 भरना है, 4 से 8 लाख पे 5% मतलब 20,000 ऐसे करके भरना है. पर न्यू रिजीम में क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर आपको याद रहेगा तो पहले के रिजीम में, ओल्ड रिजीम में, आपको कई सारे डिडक्शंस मिलते थे. ATC, ATD, HRA, लीव ट्रैवल अलाउंस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कई 6-7 जो इम्पोर्टेंट डिडक्शंस थे, अब वो फॉरगो कर लिए हैं न्यू रिजीम में. और किसी को अगर ज़्यादा तामझाम नहीं करना, ये सारे डिक्लेरेशंस, ये सारे सबमिशंस अपने ऑफिस में नहीं करने, एंड द रेट्स आर इवन बेटर, दे कैन ऑप्ट फॉर द न्यू रिजीम. व्हाट इज़ ओल्ड रिजीम? ओल्ड रिजीम में बेसिकली ये सारे डिडक्शंस आपको अवेलेबल है, बट डिडक्शंस अवेलेबल है, आपका टैक्स रेट हायर है. वहाँ के जो टैक्स रेट्स हैं न्यू रिजीम के, वो है 0 to 3 lakhs पे 0%, 3 lakhs से 7 lakhs तक 5%, 7 to 10 lakh पे 10%, 10 to 12 lakh पे 15%, 12 to 15 lakh पे 20%, और 15 लाख के जितने भी ऊपर इनकम है उस पर
30%. So the tax rates are quite higher, but somebody will also get the benefit of the deductions while filing for the old regime. So everybody has to first calculate कि मुझे कौन सा regime better पड़ रहा है, new better पड़ रहा है या old better पड़ रहा है, basis the deductions which they have. राइट. सो अभिषेक, आई थिंक ये थोड़ा टिट फॉर टैट वाला है ओल्ड Yes. टैक्स में, क्योंकि एक में डिडक्शंस थे, अब एक में टैक्स रेट कम है बट डिडक्शंस नहीं है. Yes. सो हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ डिसाइड विच वन इज इवेंचुअली बेटर? बराबर. तो डिडक्शंस पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि डिडक्शंस में क्या फ़ायदे थे, और अगर वो डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिल रहे हैं बट बिकॉज आपका टैक्स रेट कम है, तो क्या वो भी बेटर हो सकती है? बराबर. सो अगर मैं डिडक्शंस की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया 5 या 6 सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है. सबसे पहला एंड सबसे मेजर कंपोनेंट विच विल बी फॉर द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन वेदर यू शुड गो फॉर द न्यू रिजीम और द ओल्ड रिजीम विल बी द HRA. अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो तो यू कैन क्लेम 50% ऑफ योर बेसिक और वट एवर योर HRA इज देयर, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक. ये 3 फॉर्मूला में से जो भी लोएस्ट है, आप उसका एक HRA डिडक्शन क्लेम कर सकते हो वाइल फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शंस. सेकेंड इज़, अगर आपके पास घर है और आप उसका होम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आप वो इंटरेस्ट पे लॉस बुक कर सकते हो, मैक्सिमम अप टू 2 lakhs. You will get a HRA deduction. Then second, you will get a home loan interest deduction. Third, very important deduction is ATC. अगर आप PF को contribute कर रहे हो, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, ELSS में पैसा डाल रहे हो, इवन होम लोन का प्रिंसिपल जो पेमेंट कर रहे हो, तो आपको ATC में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा. योर फोर्थ इंपॉर्टेंट डिडक्शन इज ATD, विच इज़ योर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस. 50,000 रुपये आपके लिए, और 25,000 रुपया आपके लिए, आपके और आपकी वाइफ के लिए, और 50,000 रुपये आपके पेरेंट्स के लिए. सो टोटल अमाउंट विच यू कैन क्लेम अंडर योर मेडिक्लेम is about 75,000 rupees. Then the last deduction is, अगर आप कुछ donations कर रहे हो which is to trust which are registered under the income tax, और even political parties को अगर आप in case donation करते हो, legitimate political parties को, तो आप ATG और ATGGC में उसके deduction claim कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है आपकी कंपनी से and you are traveling within the limits of the LTA, then you can also claim that deduction. Now to come to a point कि क्या, so for every income slab there is a break even point. Okay, कि अगर आपके पास इतने रुपए के डिडक्शंस है तो आप ओल्ड में जाइए, अगर इतने रुपए के डिडक्शंस नहीं है तो आप न्यू में जाइए. टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज somebody is earning 24 lakhs, ठीक है, तो अगर उसके पास मोटा मोटी 8.5 लाख रुपए तक के डिडक्शंस है तो उसे ओल्ड में जाना चाहिए. राइट. और 8.5 लाख की कम है डिडक्शंस तो उसे न्यू में जाना चाहिए. नाउ लाइक आई सेड, योर HRA विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि बाकी सब पे तो लिमिट्स है. आप ATC में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए क्लेम कर पाओगे, आप ATD में मैक्सिमम 75,000 क्लेम कर पाओगे. दोनों मिला के कितना हुआ आपका, 1.5 और 75, 2.25. आप हाउसिंग लोन में लॉस फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी में 2 लाख कर पाओगे, हो गया 4.25. अब 4.25 से 8.5 लाख तक जाना है तो सिर्फ एक कंपोनेंट मेजर बचता है, वो है आपको योर HRA. सो एवरी इनकम स्लैब हैज अ ब्रेक इवन पॉइंट, एंड यू हैव टू डिसाइड बेसिस दैट ब्रेक इवन पॉइंट कि अगर आप उसको ब्रेक कर रहे हो देन यू गो फॉर ओल्ड, अगर आप नहीं ब्रेक कर रहे देन बेटर यू गो फॉर न्यू. टू मेक इट सिंप्लीफाइड मोर, इंडिया में करीबन 9 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं. लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 70% लोगों ने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये रूल नहीं था कि 12 लाख तक सैलरी इज टैक्स फ्री. सो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इन द न्यू रिजीम विच इज कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है. देयर इज एब्सोल्युटली जीरो टैक्स इफ यू आर अर्निंग अप टू 12 lakh rupees. And that is why that jump has come last year? Yes. No, this year the jump will come more. Yeah, this year obviously. Yeah, because वो 12 लाख वाला ये साल से applicable है. Right, absolutely. तो ये साल मेरी जो उम्मीद है कि almost 90% of the people will file under the new regime, and only 10% of the people will file for their old regime, जहाँ पे उनके पास वो break even point के ऊपर tax deductions है. बट अगर फॉर एग्जांपल जो आपने वो कैलकुलेशन हमें बताई थी कि
यू नीड टू सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक द बैलेंस यस कि वो आपका कहाँ पे कितना कट ऑफ हो रहा है. यस बट जैसे ही वो 12 लाख वाला इंट्रोड्यूस होगा तो आपका कट ऑफ शायद वहाँ मोस्टली लोगों का वहाँ बेटर वहाँ होगा. बेटर होगा. तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है. लोगों को क्या लग रहा है, लाइक यू सेड, एंड पीपल आर ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज. अगर समझो मैं 20 लाख तक कमा रहा हूँ तो मेरा 12 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा Yeah, और that मुझे is रिमेनिंग obviously 8 लाख पे भरना है. नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा है. नहीं, right. दिस इज एप्लीकेबल, दिस रिलीफ is applicable, the rebate 87A is applicable only for people who are earning only up to till 12 lakhs. Yeah. So ये उन्हीं लोगों के लिए है. Right. And you have to decide and check your break even point. Right, obviously. And there is also another sort of claim or deduction to this. If let's say your income is a little above like बराबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 12,10,000 रुपए मेरी इनकम है Yes. तो उस केस में क्या होगा? तो अगर आपकी 12,10,000 है तो क्या होगा, आप क्योंकि आपको अभी रिबेट मिलेगा नहीं 87A, आप 12,10,000 कर रहे हो, आप अगर स्लैब रेट वाइज टैक्सेशन कंप्यूट करोगे तो आपका मोटा मोटी 67,500 रुपीज़ का टैक्स बनेगा. Right. तो आप तो बुरा मान जाओगे कि अभिषेक यार सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, लेकिन गवर्नमेंट में मेरे से 67,500 एक्स्ट्रा ले उससे लिया. बढ़िया तो मैं 11.5 लाख ही कमा 11.5 लाख रुपए ही कमाता. बट उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी दिया है. राइट. तो पहले तो एक रिबेट दे दिया, अब उसके बाद जो लोग दुखी हो रहे हैं उनके लिए एक मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी दे दिया. ये रिलीफ क्या बोलता है कि सपोज यूर अर्निंग 12,10,000, राइट. आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से 67,500 आ रहा है, बट आप केवल 10,000 रुपये टैक्स भरिए. गॉट इट. सो फ्रॉम 12 लाख टू 12,75,000 गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू मार्जिनल टैक्स रिलीफ्स ऑल्सो. कि भैया अगर आप समझो 12,50,000 कमा रहे हो और आपको ज़्यादा टैक्स भरने को आ रहा है, 1 लाख रुपये टैक्स भरने को आ रहा है, तो आप निराश मत होइए, आप 50,000 ही टैक्स भरिए. राइट. So there is a very good concept of marginal tax relief also given by the government for people who are just slightly above the rebate level. गॉट इट. नाइस. सो ऑब्वियसली अभी हमने ये देख लिया कि किसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर हो सकती है, किसके लिए न्यू रिजीम बेटर हो सकती है, उसमें डिडक्शंस का क्या रोल है. नाउ अनदर थिंग इज विच रियली अफेक्ट्स योर इनकम टैक्स फाइलिंग इज योर sort of other income which comes from investments. बराबर. With the capital gains that you Yes. do, and this capital gains is really tricky. A lot of people miss it, a lot of people don't understand it. तो and capital gains भी 10 जगह से आता है आजकल, क्योंकि हमारे एसेट क्लासेस बढ़ गए हैं, हमारा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गया है. Yes. तो हमारा कैपिटल गेन्स के सोर्सेज भी बहुत सारे हो गए. Right. तो थोड़ा ये कैपिटल गेन्स की जो पूरी एक समुंदर है, आप इसको थोड़ा डिकोड करो हमारे लिए. तो इसको दो पार्ट में लेते हैं. एक जो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स कर रहे होंगे इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और दूसरा है प्रॉपर्टी. राइट. ठीक है, ये मेजर कैपिटल गेन के सोर्सेज है. राइट. पहले आता हूँ इक्विटी पे. इक्विटी में क्या है, अगर आपकी जो होल्डिंग पीरियड है लेस देन 12 मंथ्स की थी उस इक्विटी की, तो आपको भरना है आपके स्लैब रेट के हिसाब 20% टैक्स, नॉट एज पर स्लैब रेट, सॉरी, इट इज़ 20% टैक्स रेट. राइट. अगर आपकी होल्डिंग 12 महीने के ऊपर है, विच इज़ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो आपकी आएगी 12.5 पे, 12.5% पे. अब इसमें गवर्नमेंट ने एक और चीज़ अच्छी की है. गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक है, वो आपकी टैक्स फ्री है. ठीक है. तो अगर आप 1.5 लाख रुपए का कैपिटल गेन कर रहे हो तो पहला 1,25,000 रुपया है एग्जेम्पशन. आप एग्जेम्पन क्लेम कर दीजिए और रिमेनिंग केवल 25,000 रुपए पे आप 12.5% जस्ट टू tax क्लियर कि भरिए. एग्जेम्पशन और डिडक्शन दो डिफरेंट चीजें होती है, सो Yes. दैट लोग उसमें कंफ्यूज ना हो. Yes, yes. एग्जेम्पशन इज द थिंग वेयर जहाँ कंप्लीटली वेव ऑफ हो रहा है. राइट. वो Right. एग्जेम्पशन बेसिकली यूजुअली रहता है जो उसी इनकम को एग्जेम्प्ट करता है. Right. ठीक है, और डिडक्शन होता है कि सारी इनकम कैलकुलेट हो गई है, उसके बाद सर्टन एक्सपेंसेस ऑफ योर और सर्टन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ योर कैन बी क्लेम एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर टोटल इनकम. दैट इज यूजुअली द वर्ड यूज फॉर इन नोमेनक्लेचर डिडक्शन. तो 1,25,000 रुपये तक आपको टैक्स फ्री है. ठीक है, ऊपर के ऊपर आप जो भी उसके ऊपर का अमाउंट है आपको 12.5% टैक्स भरना है. अब आता हूँ प्रॉपर्टी पे. यहाँ पे भी प्रॉपर्टी का सिर्फ होल्डिंग पीरियड में चेंज है. अगर आपने 24 महीने के बाद प्रॉपर्टी बेची है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जहाँ पे आपको 12.5% टैक्स भरना है. और अगर आपने 24 महीने के पहले बेची है तो आपको भरना है आपके स्लैब रेट के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. राइट. ठीक है, अब गवर्नमेंट में इस पे भी बहुत दो अच्छे एग्जेम्पशंस यूज़ किए एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल मिसिंग आउट द सेकेंड वन. तो पहले सेक्शन 54 पे आता हूँ. सेक्शन 54 क्या बोलता है कि अगर आपने कोई घर बेचा है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, you can invest the capital gain amount of that residential property
into another residential property and claim the exemption. तो आपने 80 रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी समझिए, 100 रुपये में उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो केवल आपको 20 रुपया एक अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में डालना है, क्योंकि अगर आप नहीं डाले तो आपको 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा उस 20 रुपये पे. आप ऐसे भी यूजुअली इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल सेल देयर हाउसेज व्हेन दे वांट टू अपग्रेड देयर हाउस. ठीक है, तो एक घर बेचते हैं, मे बी दे आर स्टेइंग इन अ 2 BHK, दे विल टेक अ 3 BHK. तो ये केस में आपको कैपिटल गेन टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट बोलती है कि जितनी आपकी कैपिटल गेन हुई है, अगर आपने उसे री इन्वेस्ट कर दिया है तो आप टैक्स फ्री है. इसमें एक बस अपर लिमिट है 10 करोड़ रुपए का. सो ओनली कैपिटल गेन्स अप टू 10 करोड़ कैन बी क्लेम्ड इन एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 54. अब जो एक सेक्शन है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो है सेक्शन 54F. ठीक है, सेक्शन 54F क्या बोलता है? अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी छोड़ के कुछ भी चीज़ बेचा है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो और इस ज्वेलरी, इस चीज़ पे आपको कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है, तो आप अगर ये पूरे के पूरा सेल प्रोसीड्स किसी नए घर में डाल देते हो तो आपको इसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा. सो मोस्ट ऑफ द यंग इन्वेस्टर्स टुडे हु आर सेविंग देयर मनी टू बाय अ हाउस, टू डू देयर डाउन पेमेंट ऑफ द हाउस, प्लीज़ यूज़ दिस सेक्शन 54F. ये गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगों के लिए है बिकॉज ये मिलता है सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी या सेकेंड प्रॉपर्टी पे. यू कैन नॉट क्लेम इट फॉर योर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रॉपर्टी. आपकी पहली प्रॉपर्टी पे, और आप अगर सेकेंड एक कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसी पे मिलेगा. आजकल तो पहली मिल जाए, वही पहली मिल जाए तो बहुत है. तो ये बहुत अच्छा लिया है. आप आपके लाइफ के जो 25 साल से 30 साल 35 साल पैसा सेव कर रहे हो टू बाय अ हाउस, आप सेव कीजिए इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और उसके बाद उसको रिडीम कीजिए, घर लीजिए, और जितना भी कैपिटल गेन हुआ है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है. अगेन द ओनली डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 54 एंड 54F इज कि यहाँ आपको पूरा का पूरा सेल प्रोसीड्स इन्वेस्ट करना है. सो इफ यू हैव परचेज्ड अ म्यूचुअल फंड फॉर 80, यू आर सेलिंग इट फॉर 100 रुपीज, you have to invest the entire 100 rupees to buy the new residential property. And in 54 it is only the capital gains which you have to reinvest. इसमें इसके अलावा और कोई एसेट क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट्स हो गए या गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स हो गए, ये सब भी काउंट होते हैं या फिर ये नहीं काउंट? ये सब नहीं काउंट होते क्योंकि इनमें यूजुअली इंटरेस्ट आती है. एंड इंटरेस्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट. सो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, देयर आर 5 मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम. इनकम टैक्स एक्ट को भी डिवाइड किया 5 सोर्सेज ऑफ इनकम में. पहला सोर्स ऑफ इनकम इज सैलरी, सेकेंड इज बिजनेस प्रोफेशन, थर्ड इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आप जब घर रेंट पे लगाते हो और ये सब रहते हो तो उससे रेंटल जो इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती है. योर फोर्थ इज योर कैपिटल गेन टैक्स, जब आप प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड ले बेच करते हो. और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो योर इंटरेस्ट, योर डिविडेंड, all these forms part of the income from other sources, and there is no exemption which is allowed. It's directly taxed. Yes. Got it. Fine. So capital gains पे जैसे अगर हम थोड़ा मतलब sort of चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं, फिर जो कुछ हैक्स हैं, जैसे आपने एक बताया कि अगर आप म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में पैसा डालते हो एंड ओवर द पीरियड वो आपका कॉर्पस अच्छा खासा बन गया, नाउ यू आर प्लानिंग टू बाय अ होम, तो एक तरीका वो है कि वहाँ से जो भी कैपिटल गेन्स है उसको आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. Yes. राइट. इसके अलावा और कुछ जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में या इनफैक्ट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑल्सो जो हम कुछ हैक्स यूज कर सकते हैं? 2-3 है. एक हैक है कि यूजुअली दिस कैन बी यूज इन दिस लास्ट 10-15 डेज. ओके. आप मार्केट इज डाउन, एवरीबडी नोज वॉर इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी सारा लॉस रहेगा इन योर बुक्स. आई एम नॉट सेइंग कि सेल दोज एंड फॉरगेट इट. व्हाट यू कैन डू इज, दिस इज कॉल्ड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. कि आप 31 मार्च के पहले आपका एक दिन बैठ के सारा लॉस बुक कर दीजिए. आप जैसे मेरे पास अगर XYZ के 100 शेयर है, मैं 100 शेयर बेचूंगा और तुरंत खरीद लूंगा. ठीक है, उससे क्या होगा, मेरा लॉस बुक हो जाएगा. नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो, एंड इट कैन बी एडजस्टेड अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट सेविंग टैक्स, यू आर बेसिकली आप अपने टैक्स को पीछे डाल रहे हो. अवॉइड नहीं कर रहे, पीछे डाल रहे हो कि भैया ये साल टैक्स नहीं भरता हूँ. बिकॉज अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ली, मैं अभी 50 रुपये में बेच रहा हूँ, तो ठीक है, मेरा 100 रुपये का लॉस बुक हो गया. बट क्योंकि अभी मेरी परचेज कॉस्ट उस शेयर की 50 रुपये हो गई है, फ्यूचर में अगर वो 100 रुपया हो गया वापस,
तो मुझे वो डिफरेंस पे फिर से टैक्स भरना पड़ेगा. बट वॉट आई एम डूइंग हियर इज आई एम मैं अपने टैक्स को आगे लेके जा रहा हूँ. यार ये साल नहीं भर के मैं अगले साल में भरूंगा. Right. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है. ठीक है, तो आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लेते हो और उसे एडजस्ट करते हो इसके साथ योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आप 20% भर रहे हो. और फ्यूचर में अगर आपने ये शेयर 12 महीने के बाद बेचा राइट. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा. हाँ. तो आपको वहाँ पे तब 12.5% टैक्स ही लगेगा. Right. तो आप ये एक सिंपल हैक यूज़ कर सकते हो बिफोर 31st ऑफ मार्च. दैट इज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. देयर इज अनदर थिंग, अगर आपके पास प्रॉफिट्स है सो बुक प्रॉफिट्स अप टू 1,25,000 रुपीज़, क्योंकि एवरी ईयर आपको 1,25,000 रुपये का टैक्स फ्री मिलता है. तो आप हो, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स है, 4 लोग में आप हर में 1,25,000 रुपया क्लेम कर लो. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके बच्चे एडल्ट हो गए हैं, ठीक है, और अब आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे आपके बच्चों के लिए आपके नाम पे, आप उन्हें गिफ्ट कर दीजिए. Good. ठीक है, अगर आप उनको गिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, अब टैक्स उन पे लगेगा रादर देन यू. व्हाई? बिकॉज गिफ्टिंग विद इन द रिलेटिव्स इज कंप्लीटली टैक्स फ्री. और आपके बच्चे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बिकम योर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. क्योंकि मैंने देखा है सर, कई बार जो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है वो यूजुअली एक सरचार्ज के एरिया में भी आता है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सरचार्ज, वेयर इफ योर इनकम इज मोर देन 1 crore यू हैव टू पे 10% टैक्स. Right. अब वो सरचार्ज के कारण क्या होता है, आप अगर 12.5% कैपिटल गेन टैक्स में हो, आपको उस पर भी 10% सरचार्ज देना पड़ता है. 4% सेस तो इन एनी केस देना ही है. तो जो लोग ये स्पेशली सरचार्ज के चैप्टर में है, वो लोग को क्या करना चाहिए, दे कैन गिफ्ट देयर म्यूचुअल फंड्स टू देयर चिल्ड्रन Good. और टू देयर पेरेंट्स. One very important thing here is don't gift it to your wife because there is a provision called as clubbing of income. अगर आप अपनी वाइफ को ये गिफ्ट करते हो तो ये माना जाएगा कि ये आपका ही इनकम है. Right. बट अगर आप अपने बच्चों को गिफ्ट करते हो, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करते हो, देन दिस इज नॉट एप्लीकेबल. सो दीज 2-3 हैक्स, वन इज़ योर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. 31 मार्च के पहले मार्केट डाउन है, सबके पास इक्विटी में लॉस रहेगा, आप बुक कर लीजिए. दूसरा, हर साल 1,25,000 तक का गेन बुक कर लीजिए. तीसरा, यूज गिफ्टिंग प्रोविजंस टैक्टफुली दैट यू कैन सेव ऑन योर टैक्सेस. Right. अच्छा, ये गिफ्टिंग में जो आपने स्पेसिफिकली पॉइंट रेज किया, बिकॉज आई रिमेंबर माय फादर वंस क्रिएटेड अ गिफ्ट डीड फॉर माय मदर. उस केस में टैक्स नहीं लगा था शायद. बराबर, यस. तो ये गिफ्ट डीड वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कैन दैट आल्सो बी यूज्ड? सो गिफ्टिंग बेसिकली क्या है, अगर मैं अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर मुझे कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, मेरे चाचा मुझे कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री. इंडिया में 3 या 4 चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है. एक है ये गिफ्टिंग, अगर आपको अपने ब्लड रिलेटिव से कुछ पैसा मिल रहा है, इट इज़ टैक्स फ्री. सेकेंड, अगर आपको इनहेरिटेंस में कुछ पैसा मिल रहा है, इट इज़ टैक्स फ्री. थर्ड, अगर आपको कोई बंदा डेथ बेड पे है और वो आपको पैसे दे रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री. फोर्थ, अगर आपकी शादी है और आपकी शादी में आपको पैसे मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं थ्रू नॉन रिलेटिव पीपल, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री. बट इज देयर अ लिमिट और एन अमाउंट टू इट? नथिंग. अगर इवन इफ यू गेट अ 150 crore जेट फ्रॉम मुकेश अंबानी, इट विल बी टैक्स फ्री. द ओनली थिंग इज यू शुड हैव द प्रॉपर पेपर वर्क एंड अकाउंटिंग की भाई ये किसने दिया है आपको, एंड यू हैव ऑल द पेपर्स इन प्लेस कि भैया ये मुझे, ये सारे गिफ्ट्स इन लोगों ने मुझे दिए और ये पैसा मैंने डाला है. While filing your return, make sure you disclose these under the exempt income. Lot of people forget. लोगों क्या है, सुन लिया कि यार अभिषेक गिफ्टिंग तो टैक्स फ्री है, मेरे डैड ने मुझे 5 लाख दे दिया, रिटर्न फाइल करते समय भूल जाते हैं बताना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिटर्न फाइल करते समय उसे एक एग्जेम्प्ट इनकम का एग्जिबिट आता है, उसमें ये फाइल किया जाए. राइट. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया. तो ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं, मतलब इसी से ही मतलब मेरा एक आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो सकता है कि जो हम इनकम टैक्स फाइल करते टाइम भूल जाते हैं दिखाना, या ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं होता है, बट सॉरी मतलब हमारा इंटेंशन छुपाने का कुछ नहीं होता है, बट मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हम रह जाता है, मिस हो जाता है. तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें डिस्क्लोज करना ही करना है? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, क्योंकि ईयर एंड आ रहा है, अब एडवांस टैक्स का टाइम आ गया है. आपको एक्चुअली जब तक ये आउट होगा तब तो आई थिंक एडवांस टैक्स का डेट चला जाएगा. 15 मार्च इज़ द लास्ट डे टू फाइल
पे योर एडवांस टैक्स। अगर आप 15 मार्च तक अपना 100% ऑफ द टैक्स नहीं भरते, देन यू विल बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 234A, B and C। Right. टू डू अ समरी, आपको महीने का 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा फॉर वॉट एवर डिले यू आर डूइंग इन पेइंग योर एडवांस टैक्स। सो वन रिक्वेस्ट टू एवरी व्यूअर इज, प्लीज़ आप सबसे पहले अपना AIS और 26AS खोलिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मेजॉरिटी पता चल जाएगा कि आपकी इनकम्स क्या क्या थी, वॉट इंटरेस्ट यू गॉट फ्रॉम योर FDs, वॉट कैपिटल गेन्स यू गॉट, हाउ मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स यू गॉट, और उससे आपका प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए और 15 मार्च के पहले आपका एडवांस टैक्स पे कर दीजिए। वन वेरी क्रिटिकल थिंग। सेकेंड, जहाँ मैंने देखा है मैक्सिमम नोटिस आ रही है, क्योंकि अब क्या हो गया, सिस्टम इनकम टैक्स का बहुत स्ट्रांग हो गया है। सो दे ट्राई टू कैच ऑटोमेटिकली कि कहाँ का डिस्क्रिपेंसीज है। हमेशा आपका AIS और 26AS को मैच कीजिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। 99% अगर आपका ये मैच नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत नोटिस आने की संभावना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ जहाँ भी नोटिस आ रही है ज़्यादा करके, वो इसी वजह से आ रही है कि उनका 26AS या AIS मैच नहीं कर रहा। तीसरी अब मैं देख रहा हूँ जो बहुत क्लाइंटों को नोटिस आ रही है, जहाँ लोगों ने फॉरेन एसेट्स लिए। अब लोगों को लगता है फॉरेन एसेट्स बहुत फैंसी चीज़ है, बट इंडिया में बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं आजकल, बिकॉज दे आर सो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ऐप्स एंड ऑल आ गए जहाँ से आप इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दे आर सेंडिंग देयर मनी थ्रू द ऐप इन अ वेरी 2 minutes थिंग, बट दे आर फॉरगेटिंग दैट बॉस यू हैव टू रिपोर्ट दिस in your income tax return filing that these are the foreign assets which I hold. Right. If you don't report this, as per the FEMA law, there is a penalty of 10 lakh rupees per asset for non-disclosing of foreign assets. Right. तो तीसरी एक जगह मैं देख रहा हूँ जो बहुत लोगों को नोटिस आ रही है, वो ये है। चौथी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव द एंटायर चेन ऑफ मनी, बिकॉज हमेशा प्रॉपर्टी क्या है, आप जैसे बॉम्बे जैसे शहर में विश्वास जी, या गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ के नीचे तो कुछ आ ही नहीं रहा है बेसिक चीज़ें। तो इट्स अ मेजर चंक ऑफ योर इनकम, वॉट एवर यू हैव अर्न इन योर लास्ट 5-10 years। सो इनकम टैक्स बहुत स्क्रूटिनाइज कर रहा है कि यार ये पैसा कहाँ से पे किया गया है। सो ऑलवेज हैव द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ द मनी, कि यार ये XYZ जितना भी पेमेंट हुआ मेरा, वो मैंने कहाँ से पेमेंट्स करी है। कई बार हम क्या करते हैं, फादर से 5 लाख ले लेते हैं एज अ गिफ्ट अगेन, बट हम उस गिफ्ट को डिस्क्लोज नहीं करते। तो इनकम टैक्स इज ट्राइंग टू कैच दोज थिंग्स। सो दीज आर वन वेरी कॉमन मिस्टेक्स विच आई हैव सीन। वन वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक आई हैव ऑल्सो सीन इज people have not updated their email ID and mobile number on income tax department. Lot of people come to us after a certain point of time कि यार ये नोटिस तो मेरे नज़र में ही नहीं आई अभिषेक। क्यों नज़र में नहीं आए? क्योंकि आपने अपना इनकम टैक्स में ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया था। कई लोगों ने अपना ईमेल आईडी अपने CA का रख दिया है, या कोई पुराना ईमेल आईडी था, या कोई पुराने ऑफिस में काम करते थे उसका ईमेल आईडी था। एनी नोटिस विच यू रिसीव फ्रॉम इनकम टैक्स हैज़ टू बी रिप्लाइड मैक्सिमम विद इन 30 days। आपके पास 30 दिन रहते हैं उस नोटिस को रिप्लाई करने का। अगर आपने 30 दिन में नहीं रिप्लाई किया, देन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड। वो देंगे आपको मे बी 1-2 फिर से अपॉर्चुनिटी देंगे कि यार आप रिप्लाई कर दीजिए, बट अगर आपने मिस कर दिया देन एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाएगा एंड देन द थिंग्स बिकम मोर मतलब लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है आपके सॉल्विंग चीज़ें कि आप CIT अपील में जाइए, यू नो कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल कीजिए। CIT अपील भी पूछता है भाई आपसे कैसे रह गया, इनके पास तो सर्विस है कि इन्होंने इस दिन पे आपको सर्विस किया है नोटिस। तो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हर 3 से 6 महीने में ट्राई कीजिए, एक बार अपने पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि कोई नोटिस तो नहीं आई है, किसी चीज़ का मुझे जवाब तो नहीं देना है। अब उन इनकम टैक्स से क्या एक वर्क स्टेशन ही बना लिया है लोगों के लिए। आप वर्क लिस्ट है, आप जाइए वहाँ पे चेक कर लीजिए कि कोई मेरा पेंडिंग टास्क तो इनकम टैक्स से बचा है कि नहीं बचा है। Right. So interestingly, you know, you shared in that particular interview that I'm talking about कि last year बहुत लोगों को notices आए। Yes. Right. What was that number exactly? कितने लोगों को notices आए? ऑलमोस्ट 3-4 लाख लोगों को तो अभी रिसेंट में नोटिस आ गए हैं, ओनली फॉर द पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन।
राइट, तो आप सिर्फ कह रहे हो कि 3-4 लाख लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस के लिए आ गए। के नोटिस आए बिकॉज मोस्ट ऑफ द सैलरीड पीपल हैव डन illegal political donations. What people are trying to do is they donate some money to a political party and then they take the cash back. राइट, ठीक है, अब ये सारी पार्टीज के ऊपर इनकम टैक्स ने पता कर लिया कि अच्छा सबने अपने रिटर्न में डाल दिया है, ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी, मैक्सिमम इंडिया में 1000 2000 3000 पार्टी है। इनकम टैक्स ने बोला इन सबको चेक कर लो, सबको चेक कर लिया इनकम टैक्स ने, जो लेजिटिमेट है उनको लेजिटिमेट में डाल दिया, इलेजिटिमेट को इलेजिटिमेट में डाल दिया और सबको नोटिस डाल दी। राइट, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट बाय सेइंग कि हमें नहीं पता था कि ये मैंने तो प्रॉपर किया, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास रिसीट है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज दैट कैश हैज़ बीन गिवन बैक। सो इनकम टैक्स इज नॉट लिसनिंग टू दीज थिंग्स वेयर पीपल आर सेइंग कि यार मेरा तो लेजिटिमेट है। राइट, तो एक ये बहुत बड़ा नोटिस आने का रीज़न है लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन। राइट, यानी एक ऐसा लूप होल था ना आई थिंक ये पहले, बिकॉज जो बाकी सारी चीज़ें हैं डिडक्शंस वाली उन सब में तो आपको प्रूफ दिखाना ही पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी आपने कोई फेक रिसीट या कुछ भी कर लिया, सो गवर्नमेंट couldn't catch, बट इन द टाइम ऑफ डिजिटाइजेशन दीज थिंग्स आर वेरी इजीली ट्रैकेबल। पहले ATG बहुत चलता था विश्वास जी, राइट, बट उसमें क्या है, इनकम टैक्स ने वो लूप होल बंद किया राइट, क्योंकि उसमें डाल दिया कि भैया आपको सर्टिफिकेट लेना है उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट का, राइट, तो वो ATG वाला बंद हो गया। उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी को लोगों ने बहुत मिसयूज़ किया। राइट, अब टचवुड आई थिंक आई हैव सीन कि 99% ऑफ द पीपल हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम यूजिंग दीज बैड थिंग्स एंड पेइंग देयर टैक्सेस प्रॉपरली। right. And for one other thing, that I also personally seeing a lot of people are getting income tax notices is because of their credit card spend. यस, And because I've worked in this industry, so I know that मतलब जनरली द रूल ऑफ थम वी यूज टू टेल पीपल वाज कि जितनी आपकी इनकम है और उससे ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर रहे हो, सो देयर इज़ अ चांस कि शायद आपको नोटिस आ जाएगा। यस, एंड कुछ लोग मैंने देखा है देयर इनकम देयर रिपोर्टेड इज 24 lakhs, देयर क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स आर 1.5 2 CR Yeah. 3 CR। तो इस केस में आपने क्या क्या केसेस देखे हैं ऐसे? तो ये मेजरली क्यों हो रहा है ना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे और ये सब में बहुत रील्स चल रही है ऑन रिवॉर्ड पॉइंट्स, मैंने ही चलाई है, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड पॉइंट के कारण लोगों को क्या एक लालसा हो रही है जोश चढ़ गया। कि यार चलो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो स्वाइप करो स्वाइप करो। सैलरीड क्लास के लिए यूजुअली आई हैव सीन क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पे नोटिस कम है बिकॉज उनके पास ज़्यादा देयर इज नो एस्केपिंग ऑफ इनकम मच। यूजुअली इन बिजनेस एंड प्रोफेशन पीपल उनको भी ज़्यादा आ रहे हैं, बताओ उनको ज़्यादा आ रहे हैं कि भैया आपका अगर इनकम आप फाइल कर रहे हो 20 लाख रुपए, आपका क्रेडिट कार्ड स्पेंड पे दिख रहा है 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, तो हाउ इज़ दिस जस्टिफाइड कि आपकी इनकम 20 लाख है और 50, ये रिमेनिंग पैसा कहाँ से आया? राइट, तो एंड सी सिस्टम जनरेटेड में क्या होता है ना, बल्क नोटिस कैन बी सेंड विद इन मिनट्स। राइट, भैया 5000, जैसे कि इनकम टैक्स ने अभी नज कैंपेन चलाया था, सिर्फ नज किया, दे डिडंट हैड, उन्होंने कोई बेसिक एनालिसिस नहीं किया कि यार ये चीज़ों को एनालाइज करो। सब जिनका भी रिफंड था ना, सबको एक नज मैसेज भेज दिया कि भैया हमें आपके इसमें ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, आपको अगर अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करना है तो आज ही कर दीजिए, ठीक है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, 20,000 करोड़ आ गए इनकम टैक्स को सिर्फ ये नज कैंपेन पे। लोगों ने अपने रिटर्न फाइल रिवाइज कर दिए राइट, कि भैया नहीं करना है अपने को ये सब, क्या पता इनकम टैक्स ने पकड़ लिया है मेरी चोरी, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। राइट, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज बिकम वेरी स्मार्ट। एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड दे डेटा नो आ गया है, द अब सारा डिजिटल है, तो दे हैव ऑल द डेटा। डेटा, तो या यू कांट हाइड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण नोटिस, इवन फॉरेन ट्रैवल पे भी बहुत नोटिस आ रहे हैं अच्छा, कि भैया आपकी इनकम अगर थी 10 लाख 12 लाख, हाँ ट्रैवल आपने किया, आपने ट्रैवल किया 30 लाख बिजनेस क्लास 40 फ्लाई कर रहा लाख, हूँ, क्योंकि अगेन वो रिवॉर्ड पॉइंट्स की लालसा, लोगों ने यहाँ से रिवॉर्ड पॉइंट निकालने की ट्राई किया, वहाँ से लाउंज एक्सेस ये वो, और क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स आर हाई वेयर एज इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन सैलरीड लोगों को भी बहुत नोटिस आ रहे हैं Yes. क्रेडिट कार्ड के चक्कर में। वो करते क्या है, सैलरी थी कि किसी की अगर मान लीजिए 12 लाख है,
उनके स्पेंड 30-40 लाख क्यों है? वो दोस्तों के खर्चे कर रहे हैं जिनसे वो पैसे ले लेते हैं। वो कोई दोस्त बोलेगा यार तू दे दे मैं तेरे को दे दूंगा, ईएमआई पे लोग परचेस कर रहे हैं हाँ, भैया, सबके पास आईफोन चाहिए सबको। तो HDFC भैया का डिस्काउंट है तो अपने दोस्त को ढूंढेंगे HDFC वाला कौन है। HDFC को कोई बोलेगा यार 1500 रुपया इस बैंक पे डिस्काउंट है, मुझे इस बैंक का कार्ड दे। हाँ, तो वो सारी कई चीजें भी चल रही है, बट स्लोली एंड स्टेडली दोज लूप होल्स आर आल्सो गेटिंग ब्लॉक। पहले जैसे क्रेडिट कार्ड पे रेंट पेमेंट पे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे, राइट, वो बंद कर दिया banks आरबीआई ने, सेड कि यार अब ये बंद करो, रेंट आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड पे नहीं कर सकते। It was also one of the most fraudulent sort of networks that was becoming यस पीछे सारा। तो and in fact banks have also become very proactive कि ज्वेलरी पेमेंट्स पे हमने पॉइंट्स अब बंद कर दिए हैं, हमने Utility payment पे बंद कर दिए। पेमेंट्स पे बंद कर दिए हैं, फ्यूल पे तो वैसे ही पहले ही तंगी पहले ही थी। था। तो banks are also catching up, basically institutions are also catching up, सी और ये धीरे धीरे बंद ही होगा, नोबडी विल डू अ लॉस, right, एवरीबडी इज हियर टू मेक मनी। right, सो इवेंचुअली अगर उन्हें समझ आने लग गया, लुक एट लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आर स्लोली एंड स्टडली गेटिंग डाउनग्रेडेड कि, और दे आर पुटिंग अप दिस थिंग कि यार आप कैपिंग भी, और कैपिंग से ज्यादा अभी एलिजिबिलिटी कि आपको हर महीने 5000 रुपये स्वाइप करना है तो ही आपको ये महीने ये एलिजिबिलिटी मिलेगी। लाउंजेस पे अब ऐसी हो गया 50,000 रुपये स्पेंड करो क्वार्टर में तब जाके आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि यार फ्री में कार्ड दे दिया आप इंजॉय कर रहे हो। तो स्लोली एंड स्टेडीली ऑल दीज लूप होल्स अराउंड क्रेडिट कार्ड विल ऑल्सो स्टॉप। राइट। सो जैसे कि हमने बात करा कि सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स नोटिस आते हैं वो जनरली बिजनेस प्रोफेशंस में ही आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोफेशन है अगर किसी को कैश की इनकम बहुत आती है या जो भी होता है वो लोग अपने टैक्सेस बचाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। तो जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, मतलब हाउ शुड दे अप्रोच देयर इनकम टैक्स फाइलिंग्स? तो बिजनेस एंड प्रोफेशन लोगों के लिए ना दो बहुत अच्छे सेक्शंस है इनकम टैक्स ने जो दिए है। एक है सेक्शन 44 AD और एक है सेक्शन 44 ADA। राइट। सेक्शन 44 AD क्या बोलता है कि सर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है, चाहे कैश में है, वाइट में है, जिसमें भी है, आप आपके वाइट के कंपोनेंट पे 6% प्रॉफिट दिखाइए और आपके कैश के कंपोनेंट पे 8% प्रॉफिट दिखाइए और अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर योर अकाउंटिंग, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट, PNL, एनीथिंग। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम, अगर किसी का रेवेन्यू टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है, पूरा वाइट में, 6% उसको प्रॉफिट दिखाना है विच इज़ 12 लाख रुपए, ठीक है, कंप्लीटली टैक्स फ्री। तो 2 करोड़ रुपीस तक का टर्नओवर 6% प्रॉफिट दिखा के आप 0 टैक्स भर सकते हो। राइट। अब इन्हें भी रिवाइज किया है थोड़ा सा, यू कैन गो अप टू 3 करोड़ ऑल्सो, मैक्सिमम टर्नओवर इज अप टू 3 करोड़। उसमें सिर्फ एक अपर लिमिट क्या है कि आपकी कैश की रिसीट जो है वो मैक्सिमम 5% होनी चाहिए। राइट। तो 3 करोड़ तक के इनकम पे भी, जहाँ 95% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट विल बी वाइट कॉम्पोनेंट, आप 6% प्रॉफिट दिखाइए और कैश कॉम्पोनेंट पे 8% प्रॉफिट दिखाइए और आपका टैक्स फाइल कर दीजिए सिंगल क्लिक में। बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली अगर मेरी वाइट की इनकम अच्छी खासी है, चाहे 2 करोड़ हो 3 करोड़ हो, तो उसमें क्लियरली जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो क्लियरली दिख रहा है कि मेरा एक्सपेंस कितना है, मेरी सैलरीज कितनी हैं, Yes. मैं पर्सनल अपनी खुद की सैलरी कितनी विड्रॉ कर रहा हूँ। तो उस केस में भी गवर्नमेंट मान लीजिए कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए 20% है, यस तो मुझे 20% नहीं रिपोर्ट करना, मैं 8% दिखा के उसको वो कर सकता हूँ। यस। तो ये देखिए थोड़ा डिबेटेबल है। हाँ। ओल्ड रिजीम में नहीं, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में ये थोड़ा सा लूपहोल जो है वो अभी न्यू इनकम टैक्स एक्ट में फुलफिल कर दिया है बाय सेइंग कि यार आपका जो 6% और एक्चुअल, हाँ। वो एक्ट में ही लिख दिया है कि भैया जो भी आपका एक्चुअल है आप वो डिक्लेयर कीजिए। अगर आपका 20% एक्चुअल है, आप बैलेंस शीट PNL मत फाइल कीजिए, बट 20% डाल दीजिए। ठीक है। न्यू टैक्स एक्ट में अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं है कि आपको एक्चुअल दिखाना है या 6% दिखाना है। दैट इज़ वाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 6% ही दिखाते हैं। God. और अभी तक उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नोटिसेस या स्क्रूटिनी नहीं आई है कि जिन्होंने 6% दिखा के अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। गवर्नमेंट का एक मानना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यार मिनिमम आप 6% तो प्रॉफिट
कर ही रहे हो। बिजनेस में भी मतलब क्योंकि काफ़ी होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, फिर पार्टनरशिप है, Yes. फिर HUF है, फिर Yes. प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है या इसमें क्या क्या? नहीं, तो ये इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल है। राइट, ओके, ये दो लोग 44AD का पार्ट इस्तेमाल कर सकते कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कई लोग एक हैक करते हैं, जैसे ए पर्सन है, वो अपने सोल प्रोप्राइटर में भी पैसा ले लेता है 2 करोड़, एक पार्टनरशिप फर्म बनाता है वाइफ के साथ, उसमें भी 2 करोड़ रुपया ले लेता है Right. और अपनी इनकम को Right. स्प्लिट कर देता है। Right. तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह पे आप यूज़ कर सकते हो 44AD। आपके पास 10 पार्टनरशिप फर्म है तो आप 10 जगह पे 44AD यूज़ कर सकते हो, और पर्सनल में भी 44AD यूज़ कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट ऑन द पार्टनरशिप फर्म्स। Got it. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए है, एक सेक्शन है 44ADA विच इज़ फॉर प्रोफेशनल्स। अब ये केस में गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आपकी 50 लाख तक की इनकम है, ओके, फॉर डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, तो आप 50% ऑफ योर रेवेन्यू यू कैन शो इट एज प्रॉफिट एंड फाइल योर रिटर्न्स। यू डोंट नीड टू फाइल योर P&L, बैलेंस शीट एंड अदर स्टफ टू बेसिकली, इट इज़ Right. हैजल फ्री। Right. आप 50% अपनी प्रॉफिट दिखाए और रिटर्न फाइल कीजिए। Right. सो नाउ इन दिस वेरी केस, अगर आपको प्रोफेशनल इनकम आ रही है 24 लाख रुपए तक साल की, तो आपको 50% दिखाना है, विच इज़ 12 लाख रुपए। अगेन आपको कोई टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना। ये जनरली बात हो रही है फ्रीलांसर्स या जिनको वैसी बट ओनली फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस Right. प्रोफेशनल्स। उसमें एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कैटेगरी है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का। राइट, डॉक्टर, इंजीनियर, CAs, CS, ये सब तो है ही, बट देयर इज अ वेरी गुड कैटेगरी कॉल्ड एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स राइट, हु कैन क्लेम दिस 44ADA। राइट, तो अगर कोई 2 लाख रुपए तक प्रोफेशनल इनकम कमा रहा है महीने की, उसे भी कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। कोई सैलरी कमा रहा है हर महीने 1 लाख रुपए तक की, उसे कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। कोई टर्नओवर कर रहा है 2 करोड़ रुपए तक का वाइट में, इन कैश, सॉरी इन वाइट रिसीट्स, बैंक रिसीट्स, राइट, उसे भी कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट, गॉट इट। तो बहुत सारे सेक्शंस इनकम टैक्स ने लाए हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। कोई भी टैक्स इवेजन के लिए नहीं है, इट इज़ प्रॉपर टैक्स प्लानिंग। यू हैव टू सिट विथ योर टैक्स कंसल्टेंट एंड प्लान योर टैक्सेस Right. वेल। Right, got it. And lastly, Abhishek ji, to sum this up, what are, let's say, because anyway, like I said, 31st March is coming up. आपने हमें थोड़ी चीज़ें बताई हैं जो करनी है 31st मार्च से पहले। मान के चलिए किसी को नोटिस अगर आ भी जाता है, ठीक है, तो उस केस में कैसे, जैसे आपने बोला कि एक तो विद इन 30 डेज आपको रिप्लाई करना होता है, दैट इज़ कंपलसरी, बट उसमें क्या पैनिक करने की ज़रूरत है या फिर आपको एग्जैक्टली क्या प्रोसेस रहना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए? तो यूजुअली मैं सबको, जस्ट बिकॉज आई एम अ CA, आई विल नॉट, आई एम सेइंग दिस कि यार आप कंसल्टेंट के पास जाइए, बट डेफिनेटली इफ सम रिटर्न हैज़ बीन रेड फ्लैग्ड, देन डोंट रिप्लाइड बाय योरसेल्फ, गो टू अ टैक्स कंसल्टेंट प्रॉपर एंड उसी से एक प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कराइए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार रिप्लाई फाइल कर दिया, देन इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। राइट, सो ऐसा नहीं है कि चल ठीक है मैं बाद में चेंज कर दूंगा मेरा सेंटेंस। राइट, वॉट एवर यू आर रिप्लाइंग, इट इज़ गोल्डन वर्ड्स, राइट, ठीक है। तो आप मोस्टली एक अच्छे CA के पास जाइए, एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जाइए और उन्हीं से रिप्लाई फाइल कीजिए। सेकेंड, 90% केसेस में इनकम टैक्स आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप अपना रेक्टिफिकेशन रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर कोई जेन्युइनली आपसे गलती हुई है या जानबूझ के भी आपने कोई गलती की है और आपको दिख रही है इनकम टैक्स ने उस पर नोटिस भेजा है आपको, तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी है टू फाइल अ रेक्टिफिकेशन रिटर्न। फाइल योर रेक्टिफिकेशन रिटर्न, पे द टैक्सेस, पे द इंटरेस्ट, पे द पेनल्टी एंड गेट आउट ऑफ दिस राइट, हैजल। सो ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस इट्स अ कम्प्लीटली टाइम बाउंड प्रोसेस और टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल while replying your notices. So you have to take care of those things while replying. गॉट। Yeah, I think thank you so much Abhishek for joining us here today. Thank you. And I think हमें काफ़ी ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम, सारा डिडक्शन सब कुछ आज बहुत क्लियर उसमें पता लग गया है। Yes. So thank you so much for joining us today. Thank you so much. Thank you. Thank you.